नमस्कार, इवनिंग न्यूज़ लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा। चलिए खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। फरीदकोट की अदालत ने 2015 ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। पूरा गोलीकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੇਸ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ SIT ਬਣਾਈ ਸੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਨਤਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਠੰਡ ਪਊ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 9000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਰੇਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, BJP ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਲਗਭਗ 9000 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ GST ਵਿੱਚ 23%, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ 45%, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 44%, ਵੈਟ ਵਿੱਚ 6%, ਨਾਨ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿੱਚ 26% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੋਥ ਹੋਈ 23%, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 45%, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 44.49, ਵੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਪੁਆਇੰਟ, ਔਰ ਨਾਨ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 26.53%। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਟਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਡਵੈਂਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਗਾ। अगली मुख्य खबर हरियाणा से है। ई टेंडरिंग के विरोध में पूरे हरियाणा के सरपंच शुक्रवार को एक बार फिर पंचकुला के सेक्टर 5 धरना स्थल पर इकट्ठा हो गए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सरपंचों ने विधानसभा के घेराव का ऐलान किया और वहीं पुलिस ने उन्हें धरना स्थल पर रोकने के लिए तत्पर रही। ई टेंडरिंग के मामले में 5 लाख तक सीमा बढ़ाए जाने का सरकार का फॉर्मूला पंच सरपंचों को रास नहीं आ रहा है। 10 लाख सीमा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर हरियाणा के सभी जिलों के सरपंच शुक्रवार को पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में इकट्ठे हुए और प्रशासन के खिलाफ जमकर धरनाबाजी की।
अगली मुख्य खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामबन जिले में सबसे ज्यादा भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र पंतीहाल का डर हमेशा के लिए लोगों के दिलों से निकल गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने पंतीहाल में जोखिम भरे हिस्से को बाईपास करते हुए बनाई 870 मीटर लंबी टनल की एक ट्यूब को यातायात के लिए खोल दिया है। T5 टनल के बनने से लोगों की आवाजाही में बेहद ज़्यादा आसानी होगी। यात्री, बाबा बर्फानी, श्रद्धालु और भारतीय सेना रसद कश्मीर घाटी तक पहुंचाने अब आसानी से पहुंचाई जा सकेगी। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। ये बजट 53,413 करोड़ का बताया गया है। बजट में ऐलान किया गया कि सरकार 30,000 विभिन्न फंक्शनल पदों को भरेगी और मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में नशा और मादक पदार्थ मुक्त अभियान चलेगा। महिला को प्रतिमाह 1,500 रुपए दिए जाएंगे। नादौन और शिमला में ई-बस डिपो बनाए जाएंगे। इससे पहले विपक्षी भाजपा विधायक काले बिल्ले लगाकर विधानसभा पहुंचे थे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इलेक्ट्रिक गाड़ी में विधानसभा पहुंचे। ये सारी सारांश में है। अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला बजट व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बजट में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे दुष्प्रभावों से बचाव के साथ साथ प्रदेश को ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करने के लिए एक नई दिशा सुझाई गई है। इसमें पर्यटन, परिवहन, सड़कें तथा पुल और ऊर्जा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर्स के विकास तथा डिजिटाइजेशन के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सरकारी सेवाओं के सुधार पर बल दिया गया है। इस निवेश के माध्यम से प्रदेश के युवाओं के लिए अतिरिक्त रोजगार अवसर उपलब्ध होंगे और विभिन्न सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश की विकास प्रक्रिया को समावेशी बनाने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा बेड के विस्तार के लिए इस बजट में सुख राशन सहित कई और प्रस्ताव रखे गए हैं। कृषि, बागवानी, पशुपालन तथा मत्स्य क्षेत्रों में भी की गई पहल किसानों व बागवानों की आय में वृद्धि के साथ साथ इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी। विकास नीति में यह बदलाव प्रदेश की आर्थिकी में मजबूती लाएगा और प्रदेशवासियों के भविष्य को हरित, समृद्ध और स्वस्थ बनाएगा। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं यह बजट माननीय सदन के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता हूं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तानाशाही और गुंडागर्दी पूरे देश देख रहा है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी, आपको देश ने प्रधानमंत्री बनाया है, लेकिन आप मनीष सिसोदिया जैसे ईमानदार व्यक्ति को प्रताड़ित करने और उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार करने में अपने पद का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देश की जनता आपको जवाब देगी। भ्रष्टाचार किए होते तो कुछ तो सोना निकलता, संपत्ति निकलती, पैसा निकलता। कहां चला गया? तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा भाजपाइयों को कि तुम्हारे अत्याचार को, तुम्हारे जुर्म को, तुम्हारी तानाशाही को, तुम्हारी गुंडागर्दी को, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को सारा देश देख रहा है। और मोदी जी, आपको इस देश की जनता ने देश का प्रधानमंत्री बनाया। आप अपने उस पद का इस्तेमाल मनीष सिसोदिया जैसे लोगों को प्रताड़ित करने में, उनके ऊपर अत्याचार करने में, उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार करने में लगा रहे हैं। समय आने पर देश की जनता आपको जवाब देगी। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने भी सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश को समझना होगा कि कोर्ट ने सिसोदिया जी को दोषी नहीं माना है, बल्कि सीबीआई ईडी पूछताछ के बहाने उन्हें जेल में रखे हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि आज सत्तानशी को भी गलतफहमी है। कल किसी विपक्षी दल के हाथ में सीबीआई ईडी आ गई तो क्या होगा? आज मनीष सिसोदिया जी जेल में इसलिए नहीं है कि कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। वो जेल में इसलिए हैं कि बीजेपी की एजेंसी जांच की आड़ में कहती है कि हमें उन्हें जेल में रख के सवाल पूछने हैं। आपको ये फर्क समझना होगा। आज मनीष सिसोदिया जी कन्विक्ट नहीं है, उन्हें सजा नहीं हुई है कोर्ट में,
ये एजेंसियां जांच की आड़ में मनीष सिसोदिया को जेल में रखना चाहती हैं और जांच को कैसे लंबा किया जाए। 10-10 दिन की रिमांड लेकर दिन में 1 घंटे की पूछताछ करो, दर्जनों नाम दे दो कि इनसे आमना सामना कराना है, मात्र 2 लोगों से आमना सामना कराओ और कोर्ट में आकर रिमांड एप्लीकेशन डालकर कहो 10 दिन और चाहिए, 10 दिन और चाहिए, 10 दिन और चाहिए। मकसद यही है कि मनीष सिसोदिया जेल से ना निकले। ये एजेंसियों का दुरुपयोग जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि हर दिन समान नहीं होता। इंदिरा गांधी को भी लगता था कि वो कभी सत्ता से बाहर नहीं होंगी, हमेशा सत्ता पे काबिज रहेंगी। आज भी जो लोग सत्ता नशी हैं उन्हें यही गलत फहमी है कि हम लोग भी सत्ता से बाहर नहीं होंगे। कल को अगर विपक्ष के किसी राजनीतिक दल की सरकार बन गई और उसके हाथ में ईडी सीबीआई आ गई तो फिर क्या होगा? तो फिर तो इस देश में बदले की राजनीति चलेगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं बीजेपी को, बदले की राजनीति छोड़कर बदलाव की राजनीति करो। आपको बता दें, शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की ईडी की हिरासत को 5 दिन और बढ़ा दिया गया है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को इस बारे में फैसला देते हुए सिसोदिया की रिमांड 5 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। हालांकि कोर्ट ने उनके परिवार के खर्च और उनकी पत्नी के मेडिकल खर्च के लिए 40,000 रुपये और 45,000 रुपये के चेक साइन करने की इजाजत दी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जूनियर महिला कोच से छेड़छाड़ के आरोप झेल रहे संदीप सिंह पर आज महिला कोच के पिता ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर संदीप सिंह को सुरक्षा दे रहे हैं और उन्हें लगता है कि अब जांच एजेंसियां भी उनके प्रभाव में आ गई हैं। जो मंत्री संदीप सिंह है आज विधानसभा में गए हैं, क्या लगता है जिस पर मामला दर्ज होता है उसको विधानसभा में जाना चाहिए या क्या मानते हैं? नहीं, हम तो सीधी सी बात ये है कि कोई भी आदमी जो स्टिग्मेटिक हो, जिसके ऊपर आरोप लगे हुए हों और संगीन धाराएं लगी हुई हों, ऐसे व्यक्ति को तो सरकार में रखने का ही दायित्व नहीं बनता। और ये मुख्यमंत्री जी की हठधर्मिता है या वो स्टेट के प्रधान होते हुए और वो अपने दिमाग से इतना भी न्यायोचित नहीं है कि भी ऐसे व्यक्ति को उसी टाइम सैक करना चाहिए जबकि वो पूरा प्रोटेक्शन दे रहे हैं। विपक्ष ने पहले भी ये मुद्दा उठाया था, क्या लगता है विपक्ष के मुद्दों से कहीं ना कहीं सरकार पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, विपक्ष ने मुद्दा उठाया, उसके बावजूद जो है ना मुख्यमंत्री जी ने अपना हठ योग दिखा दिया कि मैं इस्तीफा नहीं लूंगा। तो इससे जो जांच कमेटी है, एसआईटी हमारी जो चंडीगढ़ की है, उसको भी प्रभावित किया है, जिसके कारण आज तक एसआईटी से जब हम मिले थे तब प्रवीर रंजन साहब ने, डीजीपी सर ने हमें आश्वासन दिया था कि भाई बहुत जल्दी न्याय करेंगे और सारी चीज़ें ठीक होंगी। हम उनसे मिलने गए थे तब, तो उनको भी कहीं ना कहीं इस तरह के बयान दे के मुख्यमंत्री जी ने एक इनडायरेक्ट इशारा कर दिया, जिसकी वजह से मुझे अब लगता है कि चंडीगढ़ एसआईटी भी इन्फ्लुएंस। खबरों के क्रम में आज बस इतना ही। अपने राज्य से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए TV9 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जुड़े रहिए इवनिंग न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।